وہ تمہاری ماں کو ونی میں مانگ رہے ہیں یشوا، شازیہ بیگم نے روتے ہوئے کہا تو یشوا کے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ امی امی ایسا کیسے؟ یشوا کو اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا۔ تمہارے ماموں نے ان کی بہن کو بھگا کے اس کو مار دیا اور اب وہ یہی چاہتے ہیں کہ میں ان کے… شازیہ بیگم کرب سے رو دی۔ یشوا تو ابھی تک گم تھی، وہ تو ماں کے ساتھ شاپنگ پر آئی تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا ان کے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ انہیں ان کی گاڑی سے نکال کر چند لوگ یہاں گاؤں لے آئے تھے اور اب وہ ان کے ڈیرے پر قید تھی۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ یشوا کو ایک دم غصہ آنے لگا۔ وہ ایسے کیسے انہیں یہاں لا کر قید کر سکتے تھے؟ یشوا بولنے کو تو بہت کچھ بولنے کو تیار تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جس علاقے میں وہ ماں کے ساتھ آگے پھنسی ہے وہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ باہر لے کے آؤ اس عورت کو۔ اس کا بھائی میری بہن کو بھگا لے گیا اور اس کو مار دیا، اب اس کی بہن کو، اس عورت کو میں اپنے نکاح میں لوں گا۔ چودھری فراست نے مونچھوں کو تاؤ دیتے اونچی آواز میں للکارتے ہوئے کہا۔ چودھری جی تھوڑا صبر کریں، سردار زاویار چودھری کو آ لینے دیں، وہی فیصلہ کریں گے۔ ان کے پاس کھڑے ایک شخص نے ادب سے کہا۔ وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ وہ گاؤں کبھی رکا ہے جو اسے پتا ہو کیا ہو کیا رہا ہے؟ مجھے یہ عورت ہر صورت اپنے نکاح میں چاہیے، سنا تم نے؟ باہر لاؤ انہیں۔ شازیہ بیگم گھبراتے ہوئے باہر نکلی تو یشوا بھی نقاب میں ان کے ساتھ تھی۔ امی گھبرانا نہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یشوا نے شازیہ بیگم کو حوصلہ دیا، لیکن اپنے سامنے اس ظالم شخص کو دیکھتے وہ اپنے حوصلے پھر سے پست ہوتے محسوس کر رہی تھی، کیونکہ اس ظالم شخص نے ان کے بھائی کو مار مار کے ادموا کر دیا تھا، لیکن وہ ابھی بھی رک رک کے سانسیں لے رہا تھا اور اب اس چودھری فراست کی نظر اس کی بہن پہ تھی۔ شازیہ بیگم جو سامنے کھڑی تھی وہ گھبرا سی گئی۔ مجھے خون بہا چاہیے اور خون بہا میں عورت چاہیے۔ شازیہ بیگم کی طرف اشارہ کرتے وہ ذرا نہ جھجکا، کیونکہ شازیہ بیگم کی روح تک کام گئی۔ اچانک سے انہیں اپنا احساس جاگا، تھی تو وہ ایک عورت ہی نہ، اور سامنے والے کی نظر کا ارتکاز سمجھ گئی تھی۔ فوراً سے اپنا نقاب درست کیا۔ اس پل انہیں اپنا شوہر شدت سے یاد آیا۔ عورت بنا مرد کے کچھ نہیں، یہ سب ممکن نہیں۔ اس بات کا فیصلہ چودھری زاویار ہی کریں گے، خود کو اس معاملے میں باغی مت کرو۔ چودھری مرتسم کی اچانک آمد اور بیچ میں ان کے بولنے پر چودھری فراست کی کو سخت ناگواز گزرا۔ خون بہا آج ہی ہوگا، ابھی ہوگا، کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں، ورنہ اس شخص کو ابھی میرے آدمی گولیوں سے بھون دیں گے۔ چودھری فراست نے اونچی آواز میں للکارا۔ کوئی بھی اس وقت اس کے راستے میں نہیں آ رہا تھا، وہ اس وقت سردار چودھری زاویار کی غیر موجودگی کا مکمل فائدہ اٹھا رہا تھا۔ سب جانتے تھے اس شخص کو روکنے کی طاقت صرف ایک انسان کر سکتا ہے، اور وہ تھا سردار چودھری زاویار، جو یہاں تھا تو نہیں لیکن یہاں کی پل پل کی خبر رکھتا تھا، اور یہی بات چودھری فراست کو جلد از جلد کوئی سخت قدم اٹھانے سے مجبور کر رہی تھی۔ مار ڈالو اس شخص کو، چودھری فراست نے فیصلہ سنایا تو شازیہ بیگم تڑپی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ایک آواز گونجی، میں خون بہا کے لیے تیار ہوں۔ سب کی سوالیہ نظریں اس نقاب پوش لڑکی کی جانب اٹھی۔ بلکہ ہزارویں حصے میں یشوا نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے ماں چاہیے تھی، اور ماں کو اس کا بھائی۔ شازیہ بیگم نے مڑ کر اپنی بیٹی کو دیکھا، لیکن ایک ڈر تھا ان کی نظر میں یشوا کے لیے، لیکن یشوا نڈر بنے وہاں کھڑی سب کی نظروں کو خود بھی محسوس کر رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ یشوا کی بات پہ چودھری فراست بھی دھند رہ گیا۔ وہ لڑکی جو بھی تھی، لیکن نقاب میں اس کی خوبصورت آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ ماں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ چودھری فراست دل ربائی ہنسی ہنسا۔ یشوا ایک ایک قدم مضبوطی سے اٹھاتی چودھری فراست کے بالکل سامنے آن کھڑی۔ یہ فیصلہ تمہیں پورے ہوش و واس میں لے کر کیا ہے نا لڑکی؟ چودھری فراست نے اسے سر سے لے کر پیر تک آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا۔ یشوا، شازیہ بیگم تڑپ کر آگے بڑھی۔ یشوا نے وہی انہیں ہاتھ اٹھا کے روکا اور آنکھوں کے اشارے سے آگے بڑھنے سے منع کیا، پھر قہرتی نظر سے چودھری فراست پر ڈالے۔ میں تیار ہوں اس ونی کے نکاح کرے، لیکن میری ماں اور میرے ماموں کی کو باحفاظت اس گاؤں سے جانے دیا جائے۔ یشوا کے کہے گئے الفاظ نہ صرف وہاں موجود سب لوگوں نے سنے تھے، بلکہ اس آنے والے شخص کے دل کے پار ہوئے تھے۔ وہ تو اس کے لیے آیا تھا، اسے اپنی پناہوں میں لینے کے لیے، اس کی ڈھال بننے کے لیے، لیکن یہاں تو خود اپنے لیے بھلی ہونے کا فیصلہ کر گئی۔ قلب سے اس شخص نے اپنی آنکھیں میچی اور انہی قدموں سے واپس پلٹا تھا۔ ایک طوفان تھا جو آنے والا تھا، اور اس نے سب کو بہا کے لے جانا تھا۔ رک جاؤ، ہمارے سردار چودھری زاویار آ گئے ہیں، ڈیرے پہ پہنچو سارے،
اب اس سارے معاملے کا فیصلہ ڈیرے پہ ہوگا اور وہی پنچایت لگے گی. چلو سب اس طرف. سردار چودھری زاویار کے سب سے قریبی بندے نے وہاں آتے سب کو اطلاع دی تو چودھری فراست اور غصہ سے جبڑ گئی تھے. اب اچانک چودھری زاویار کے آنے سے سارا معاملہ الٹنے والا تھا، لیکن چودھری فراست خون بہا معاف کرنے والوں میں سے نہیں تھا. اب سب کا رخ ڈیرے کی جانب تھا جہاں ایک بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا تھا. یشوا اور شازیہ بیگم کو عورتوں کے ساتھ ایک طرف کر کے الگ سے کھڑا کر دیا تھا، جہاں سے سردار زاویار اور مرد ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تھے. کافی عورتیں ان کے پاس کھڑی تھی. یشوا نے ہاں کو حوصلہ دیا. فراز ابھی بھی ان کے قبضے میں تھا. پنچایت میں اس وقت کافی گرما گرمی چل رہی تھی. یشوا کو امید سی تھی کہ چودھری زاویار ایک اچھا انسان ہوگا اور انہیں اپنے حق میں صفائی کا موقع ضرور فراہم کرے گا. لیکن اس کی یہ امید اس وقت ٹوٹی جب اسے نکاح کے لیے بتایا گیا. اس نے پھٹی پٹی نظروں سے وہاں موجود سب لوگوں کو دیکھا. اتنی بڑی پنچایت بٹھائی گئی لیکن کوئی بھی عورت کے حق میں آواز بلند نہ کر سکا. سب وہاں تماشائی بنے کھڑے تھے. چودھری فراست نے اپنی پنچایت سے باہر نکلتے غصے سے بڑی ایک نظر یشوا اور شازیہ بیگم پہ ڈالی اور دندناتا ہوا وہاں سے نکل گیا. یہ کیا؟ یہ شخص تو جا چکا ہے، پھر مجھے کس سے نکاح کرنا ہوگا؟ یشوا کی سوچوں کا تسلسل بدلا. اس نے ڈیرے پہ موجود لوگوں کو دیکھنا چاہا جہاں وہ سب عورتیں کھڑی تھی. وہاں سے پنچایت کا ایک حصہ نظر آ رہا تھا. سردار چودھری زاویار کا فیصلہ سنایا گیا جیسے ابھی تک یشوا دیکھ نہیں پائی تھی. اسی لمحے مولوی صاحب اور دو معزز اس طرف آئے. سب عورتیں پیچھے ہٹ گئی. یشوا نے آنے والے کو حیرت سے دیکھا. اکانامہ فل کروائے ایک بوڑھا شخص جو دیکھنے میں کافی بارب لگ رہا تھا. وہ نہایت سنجیدگی سے یشوا سے بولا. یشوا دل پہ پتھر رکھے سب کچھ بتاتی چل گئی. شازیہ بیگم کے آنسو نہیں رک رہے تھے. وہ بولنا چاہتی تھی لیکن یشوا کی دی گئی قسم کے آگے وہ مجبور ہو گئی تھی. یشوا اکمل بنت اکمل شیخ، آپ کا نکاح چودھری زاویار عادل ولد چودھری مرتسم سے طے پایا. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز نے یشوا کے کانوں میں سوت ہوگا. وہ بڑی بڑی آنکھوں والی لڑکی ایک بڑی سی شال اوڑھے چہرے کو چھپائے اپنے ڈارک براؤن آنکھوں سے وہاں موجود انسانوں کے بیچ چھپے بیڑیوں کو دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہ آیا تھا لیکن چہرے پر ایک کرب تھا جو چہرہ ڈھکا ہونے کی وجہ سے کوئی نہیں دیکھ سکا تھا. لیکن وقت آئے گا، آپ کو چل کر میرے پاس آئیں گے اور اس وقت کا میں بے صبری سے انتظار کروں گا. یشوا اس کے کانوں میں ایک باز گشت ہوئی تھی اور پھر وہ سب کچھ دل و دماغ سے نکالتی قبول ہے کہہ گئی. اسے کہنا تھا ہر حال میں اسے اپنی ماں کو بچانا تھا. اس نے اپنی قربانی دی، اپنے آپ کو خود کو اس نے ونی کے لیے پیش کیا، صرف اپنی ماں کے لیے جو سامنے کھڑی آنکھوں میں آنسو لیے اپنی بہادر بیٹی کو دیکھ رہی تھی. یشوا کا جی چاہا وہاں موجود سب کو آگ لگا دے. کیوں کیا تم نے ایسا یشوا؟ کیوں؟ آواز اٹھا کر شیشے پہ مارا اور وہ چھناکے سے ٹوٹ گیا. کمرے میں ہر چیز بکھری ہوئی تھی. کچھ بھی تو صحیح نہیں ہوا تھا. کیسے میری محبت کو تم نے یوں تماشا بنا ڈالا؟ کیسے سہوں اس درد کو؟ اب کی بار زور سے مکہ شیشے پر مارا تو اس کا ہاتھ زخمی کر گیا. خون کی بوندیں نکلی لیکن اسے پرواہ کب تھی. اس کا دل اس وقت جس کرب سے گزر رہا تھا اسے سہن کر پانا اس کے اختیار میں نہ تھا. وہ آج بہت عرصے بعد وہی بن رہا تھا جسے وہ بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا. اپنی پہچان میں تبدیلی لایا تھا. سخت زاویار سے عادل بنا تھا لیکن آج برسوں بعد پھر سے اسی مقام پر آن کھڑا ہوا تھا. آنکھیں کرب سے بند کی. کبھی معاف نہیں کروں گا تمہیں، کبھی نہیں. اپنی محبت کے تہین نہ بھولوں گا اور نہ تمہیں بھولنے دوں گا. اب تک تم نے میرا محبت والا روپ دیکھا ہے جسے تم نے ایک پل میں دھتکار دیا. اب تم میری نفرت والا روپ دیکھو گی اور اسے تم آخری سانس تک نہیں بھول پاؤ گی. یہ وعدہ ہے میرا. اس شخص نے غصے سے آنکھیں نیچے خود سے ایک عہد کیا اسے وہ نبھا سکتا بھی تھا کہ نہیں جانتا تھا. نکاح نامے کے سائن کرتے یشوا کو اپنا دل خالی خالی سا محسوس ہوا. اس کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا جو چپکے سے اس نے پوچھ لیا. شازیہ بیگم نے آگے بڑھ کر روتے ہوئے اسے گلے سے لگایا لیکن وہ یوں ہی بے تاثر رہی. کیوں کیا ایسا تم نے یشوا؟ کیوں میری بچی؟ شازیہ بیگم کے لہجے میں پہلی بار یشوا کے لیے اپنے لیے طرب تھی. وہ طرب جو ہمیشہ سے وہ چاہتی تھی لیکن اسے اپنے لیے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی. آج جب محسوس ہوئی تو یشوا کو اب اس کی ضرورت ہی نہ رہی. آپ ماموں کو فوراً ہاسپٹل لے کر جائیں، انہیں اس وقت ڈاکٹر کی ضرورت ہے. ہو سکے تو بڑے ماموں کو بلوا لیجیے گا، بابا سے کہیے گا. بولتے بولتے یشوا کے گلے میں کانٹے سے چبھنے لگے. وہ خود پہ جس طرح ضبط کے کھڑی تھی وہی جانتی تھی. یشوا
مجھے معاف۔ شازیہ بیگم نے معافی کے لیے ہاتھ جوڑے۔ بابا سے کہیے گا یہ میرا اپنا فیصلہ تھا، میں نے اپنی مرضی سے یہ نکاح کیا ہے، ہو سکے تو اپنی بیٹی کو معاف کر دے۔ اتنا کرب، اتنا درد یشوا نے کبھی محسوس نہیں کیا جتنا آج وہ معصوم دل کی لڑکی محسوس کر رہی تھی۔ دھیرے سے موبائل ان کے ہاتھ میں تھمایا۔ انہوں نے یشوا کو آجزی سے دیکھا۔ بس وہ ایک لمحہ تھا جب یشوا نے انہیں معاف کرتے گلے سے لگایا اور وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بلک بلک کر رو دی۔ اس کی ماں کو وہاں سے باہر لے جایا گیا۔ وہ اندر سے اندر تل تل مر رہی تھی۔ اپنی بیٹی کو وہ ان درندوں کے حوالے کیسے کرتی جنہوں نے اپنے خاندان کی بیٹی کو نہیں چھوڑا؟ نجمہ کو خود مار ڈالا اور الزام اس کے بھائی پر لگا دیا۔ ان کی بیٹی یشوا کے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ وہ شیخ صاحب کو کیا جواب دیں گی؟ انہیں اور فراز کو ایک گاڑی میں شہر کی طرف روانہ کر دیا گیا جیسے کہ طے ہوا تھا۔ یشوا کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا اور ارد گرد دیکھا، لیکن کوئی بھی عورت اس سے بات نہیں کر رہی تھی۔ کافی عورتیں وہاں موجود تھی لیکن کسی میں جرت نہ تھی کہ یشوا سے کچھ بھی کہتی یا پوچھتی۔ وہ سردار چودھری زاویار کی بیوی تھی، بھلے ونی میں تھی لیکن اس کی نکاح میں آ چکی تھی۔ اسی لمحے ایک معزز خاتون اندر داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں بہت خوبصورت مردانہ شال تھی۔ ان خاتون نے وہ شال یشوا کو اڑائی کہ اس کا نازک وجود اس شال میں چھپ سا گیا۔ یشوا کے دل نے اپنے رب سے مدد مانگی۔ رب نے اس کے دل میں یہ احساس جگایا جس سے اس کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوا کہ جس شخص کے نام کے ساتھ اس کا نام جڑا ہے اس کے فوراً بعد اس کے سر کو ڈھانپا گیا۔ یقیناً وہ کوئی عام ہستی نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس کے نصیب میں اسے لکھا، یا تو اس کا امتحان ہے، ایک آزمائش، یا اللہ کی طرف سے نوازا گیا ایک تحفہ۔ اس کا چہرہ ڈانپے اسے گاڑی میں بٹھایا گیا۔ اسے چودھریوں کی حویلی لے جایا جا رہا تھا۔ یشوا کا دل بہت سخت گھبرا رہا تھا۔ وہی خاتون اس کے ساتھ تھی۔ یشوا نے کسی سے کچھ بھی پوچھنا ضروری نہ سمجھا۔ سختی سے آنکھیں میچی تو مسٹر عادل کا چہرہ آنکھوں میں آن سمایا۔ وہ شخص بہت چپکے سے اس کے دل کے نہا خانے میں چھپ کے بیٹھ گیا تھا۔ یشوا نے جٹ سے آنکھیں کھولی۔ نہیں، اب نہیں۔ اب وہ ہاتھ پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ اب سب کچھ بدل گیا۔ اب مجھے ان کے بارے میں نہیں سوچنا، کن کیا میں انہیں بھول پاؤں گی؟ اور وہ جب انہیں پتا چلا کہ میں، تو کیا کریں گے وہ؟ یشوا کا دل مسٹر عادل کے لیے بے چین ہوا۔ اسے لگا تھا کہ وقتی طور پر سب خراب ہو لیکن ایل پہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنی ماں کی خواہش پر وہ مسٹر عادل کی محبت کو ٹھکرا دی۔ اپنے بڑے ماموں کے بیٹے تیمور سے رشتے کی حامی تو بڑھ گئی تھی لیکن اس کا ارادہ اس سے شادی کرنے کا بالکل بھی نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ وقت گزرتے تیمور کی اصلیت سب کے سامنے لے آتی اور پھر مسٹر عادل کے لیے وہ اپنے بابا سے بات کرتی، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہ ہو سکا۔ مسٹر عادل اور یشوا ایک ہی آفس میں جاب کرتے تھے۔ آفس کی ڈی او کا وہ بھتیجا تھا اور اسے کسی پروجیکٹ میں ان کی مدد کرنے کے لیے آیا تھا۔ یشوا کے ساتھ کام کرتے اس سے محبت کرنے لگا اور پھر اسے پرپوز کر دیا، جسے اس نے ٹھکرا دیا یہ کہہ کر کہ ہم شادی خاندان سے باہر نہیں کرتے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بڑھ پاتی اس کی زندگی میں بنی ہو کے جانا لکھا ہوا تھا۔ گاڑی حویلی کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ پوری حویلی میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ ولی ہو کر لڑکی چودھری زاویار کے نکاح میں آ رہی ہے، جس سے کوئی بھی خاتون خوش نہ تھی، خاص کر جسمین جو زاویار کے بچپن کی مانگ تھی۔ شہر پہنچتی ہاسپٹل میں فراز کو انتہائی لگاست میں رکھا گیا تھا۔ اس کے دماغ نے جسم سے ناتا توڑ لیا تھا جبکہ اس کی نسیں بھی بہت مدھم تھی۔ نجمہ کی لاش کو اس کے بھائی زبردستی لے گئے تھے جبکہ ونی کے لیے چودھری فراست کی جگہ چودھری زاویار نے اپنا نام دیا۔ بہت بحث ہوئی، یہاں تک کہ گولی بھی چلی جسے بر وقت ناکام بنایا گیا، لیکن چودھری زاویار اپنے فیصلے سے ایک انچ نہ ہٹا۔ اس لیے میں چودھرائن وہاں پہنچی اور معاملہ سنبھالا۔ پھر یہی طے ہوا کہ ونی میں سردار کی بات مانی جائے گی، لڑکی سردار چودھری زاویار کے نکاح میں آئے گی۔ بھلے نجمہ چودھری فراست کی بہن تھی لیکن وہ سوتیلی بہن تھی، جبکہ نجمہ حویلی کی بیٹی تھی اور حویلی سے چودھری فراست کو برسوں پہلے نکال دیا گیا تھا۔ اب اس کا حویلی سے کوئی لنک نہیں تھا، تو بھلے وہ زاویار کا سوتیلا چچا تھا لیکن اسے کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار نہ سونپا گیا۔ اس صورت ونی میں چودھری زاویار کا ہی نکاح ہونے جا رہا تھا۔ چودھری فراست ایک بار پھر چودھری زاویار سے مات کھا گیا۔ اس وقت اس نے اپنی سوتیلی ماں کی لاش کی مانگ کی، جو معاملے کی نزاکت کو سمجھتے چودھرائن نے ان کے حوالے کرنے کی اجازت دے دی۔ اس وقت چودھری زاویار کو چپ ہونا پڑا۔ اس وقت ایک زندہ لڑکی کو چودھری فراست سے بچانا تھا۔ وہ اس لیے اپنی بات کو مقدم رکھتا نجمہ کی لاش کو ان کے حوالے کر گیا۔ چودھری فراست وہاں سے دندناتا ہوا نکلا۔
और शाहजरा बेगम यशवा के लिए कुछ न कर सकी। उनके हाथ में यशवा का ही फोन था जिससे उन्होंने अपने भाई को कॉल करके बुलाया। क्या हुआ फराज को? बड़े भाई गुलफराज साहिब ने आते ही शाजिया बेगम से पूछा तो उन्होंने मुख्तसर सब भाई को बता दिया। गुलफराज शेख तो सर पीट कर रह गए। ये क्या कर दिया तुमने शाजिया? अकमल भाई कभी माफ नहीं करेंगे तुम्हें। वो काफी सोच विचार करते मामले की संगीनी समझते कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे। वो हॉस्पिटल काफी वक्त रुके रहे लेकिन वहां रुकने का कोई फायदा नहीं था। फराज बेहोश था, उसके ट्रीटमेंट चल रहा था। गुलफराज शाजी बेगम को घर ले आए जहां शेख साहब और शिजा काफी परेशान थे। क्या हुआ? यशवा ने फोन उठाया। शेख साहब का दिल बहुत सख्त घबराया। नहीं बाबा, आप भी फोन नहीं उठा रही। शिजा भी परेशान थी। उसी लम्हे शाजिया बेगम बाई के साथ अंदर दाखिल हुई और उनकी बिखरी हालत देख शीजा उनकी जानिब की। अम्मी क्या हुआ, आप ठीक है? शाजिया बेगम की रो रो के आंखें सूज गई थी। उन्होंने शेख साहब की जानिब टूटते हुए देखा। अकमल भाई, वो यशवा। गुलफराज शेख का सर झुका था। अकमल शेख की सवालिया नजरें बीवी पे उठे। उन्हें यकीन न आया कि यशवा उनके साथ थी और जिस तरह का उनका अंदाज था। अकमल शेख के दिल को पूछा, क्या हुआ यशवा को? यशवा यशवा कहाँ है? उन्होंने किसी डर के तहत पूछा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ शाजिया बेगम। यशवा कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? शेख साहिब ऊंची आवाज में लड़काए। शाजिया बेगम की यही बस हुई थी। वनी हो गई है वो। उनसे भी ज्यादा ऊंची आवाज में वो चिल्लाई थी। शेख साहब के पैरों तले से जमीन खिसकी। उन्हें लगा उनके साथ उनकी बीवी कोई मजाक कर रही है। आपकी बेटी कुर्बान हो गई है अपनी माँ पे। खुद को वनी में दे दिया उसने अपनी माँ को बचाने की खातिर। वो खुद को शाजिया बेगम पूट पूट कर रोती शेख साहब के सीने पर सर रख के पूट पूट कर रोती थी। आज पहली बार उन्हें खुद से शदीद नफरत महसूस हो रही थी। सारी जिंदगी उस बच्ची को प्यार मोहब्बत न दे सकी जिसकी वो हकदार थी और आज वो ऐसा काम कर गई थी कि शाजिया बेगम अपनी नजरों में गिर गई थी। शेख साहब ने जोर से उन्हें खुद से पड़े झटका कि वो लड़खड़ाती जमीन बोझ हुई। शिजा की आंखें ना हो दूर खड़ी वो ये सब देखती अपने मुंह पर हाथ रख गई। चौधरी जावियार डेरे पर सब मामला सुलझाते घर पहुंचे। काफी वक्त लग गया था। जितना जल्दी वो सब निपटाने की कोशिश करता उतना ही मामला बिगड़ रहा था। यशवा को जो चौधराइल के साथ हवेली भेज चुका था लेकिन वो खुद अभी तक ना जा सका था। अब उसकी गाड़ी हवेली से अंदर दाखिल हो रही थी जहां एक बहुत बड़ी कड़ी आजमाइश खड़ी थी। उसके लिए स्पार्ट अंदाज में वो हवेली के अंदर दाखिल हुआ। कहाँ है वो? चौधरी जावियार ने हवेली के अंदर आते दरियाफ्त किया। सभी खातूने खाना उसके इस अचानक निकाह के इकदाम से नाखुश थी, खास तौर पर जासमीन जिसने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। सारी जिंदगी उसे अपना माना और आज वो किसी और से निकाह कर रहा है। चौधरी जाविया चौधराइन की आवाज पर वो करता। उसकी आंखें लहू लुहा थी जैसे या तो वो खुद को मार डालेगा या सामने आई हर चीज को बर्बाद कर डालेगा। आपको नहीं लगता इस बार आपने ये गलत फैसला किया? मेरे फैसले से किसी को भी इंखराफ नहीं बरतने दूंगा दादी सा। जाविया ने खुद पे बमुश्किल काबू पाते उनकी बात को काटते होगा। उसकी जारहाना तेवर बता रहे थे कि आज वो अपने आपे में नहीं है, इसलिए कुछ भी सुनना या कहना बेकार था। आदिल बेटा, ये हाथ। गजाला वहां आई तो सीधी नजर जावियार के हाथ पर ठहरी जिस पे पट्टी बंधी हुई थी। मैं ठीक हूँ मासा, बाद में बात होती है। उस पार्ट अंदाज में कहता अपने कमरे की जाने पड़ गया जहां वो बनी हुई लड़की मौजूद थी। वो इतने बड़े कमरे की बीचों बीच खड़ी इस वक्त खुद को सूली पे खड़ा हो महसूस कर रही थी जिसे सूली पर लटकाने से उसकी आखिरी ख्वाहिश पे भी पूछना गवारा ना किया गया। वो लड़की अपने दिलो दिमाग को माउफ होता हुआ महसूस करती। इस वक्त अपना सर भी चकराता हुआ महसूस कर रही थी। उसने सुबह के नाश्ते के बाद से कुछ नहीं खाया हुआ था और इस दौरान जो कुछ हुआ उसने उसकी हवास अब धीरे धीरे स्लिप करना शुरू करते थे। उसके गिर्द अभी भी वही शाल लिपटी थी। आम से सादा से लिबास में वो परियों सा हुस्न रखने वाली यशवा अकमल शेख मिसिस यशवा जावियार आदिल पंच की थी और वो शख्स जिसका नसीब बला था किसी भी वक्त आके उस पर हक वसूल कर सकता था। इस ख्याल के हाथे उसके रोंगटे खड़े हुए, हथेलियां पसीने से भड़के, माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। वो यहाँ किसी को नहीं जानती थी। उसे सीधा रूम में लाया गया। उसका चेहरा भी किसी ने नहीं देखा था। उसने कहाँ रहना है कहाँ नहीं इसका फैसला चौधरी जाविया भी करने वाला था। सभी इस मामले में बेबस थे। जिसमें उनका तरफना भी जायज था। वो उसके नाम थी लेकिन जाविया ने उसे कभी कोई आस नहीं दिलाई थी।
चौधरी जाविया ने जैसे ही दरवाजा खुला, वो सामने खड़ी लड़की को देखकर अपना गुस्सा चाहकर भी जब्त नहीं कर पाया था। उसकी सफेद रंगत में जर्दी घुली हुई थी और वो सदियों की बीमार लग रही थी। उसका यहाँ मौजूद होना ही चौधरी जावियार के गुस्से को हवा दे रहा था। चौधरी जावियार का बस नहीं चल रहा था कि सामने खड़ी उस लड़की की जान ले ले। आगे बढ़कर गुस्से से उसकी कलाई को दबोचा कि वो लड़खड़ाकर उसी की बाहों में झूल गई। शेख साहब ने जोर से उन्हें खुद से परे झटका कि वो लड़खड़ाती हुई जमीन बोस हुई। रुख पलटकर जख्मी नजरों से शौहर को देखने लगी। बोलो, मेरी बेटी कहाँ है? किसके हवाले करके आई हो? शेख साहब अब की बार दहाड़े थे। शाजिया बेगम सहल गई। शेख साहब, मेरी बात। गुलफराज शेख से उन्हें ठंडा रखना चाहा तो गुस्से से उनका भी हाथ चटक गए। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, अभी, इसी वक्त। वो कतई अंदाज में बोले थे। शीजा की आंखें नम थी। दूर खड़ी हुई सब देखते अपने मुंह पर हाथ रखे। मेरी बात समझे ना, वो उसे खुद अपनी मर्जी से खुद को वली चिटाख। शाजिया बेगम ने उठते उनके पास जाते रोते की कहने की कोशिश की, लेकिन शेख साहब के एक थप्पड़ ने उनके 14 तप रोशन कर दिए। वो अपना आप काबू न रख पाई। अम्मी, शीजा भाग कर उनकी जाने पड़ी। मेरी बेटी कहाँ है शाजिया बेगम? मुझे अभी इसी वक्त बताओ, वरना मैं तुम्हें तलाक। इतना कहते हुए उनका हाथ दिल पर गया। अपने दिल में शदीद ठेस उठी लफ्ज तलाक से। शाजिया बेगम के दिल की दुनिया हिल गई। मामा, बाबा। शीजा माँ को छोड़ते भागती ही बाप के पास आई। बाबा, आप? वो लड़खड़ाते उसके बाजू में गिरे थे। उनका हाथ अब भी दिल की तरफ ही था। उन्होंने सख्ती से उस जगह को पकड़ रखा था। उनके चेहरे पर दर्द के आसार नुमाए थे। 16 साल शीजा बाप की यह हालत देखती रो दी। बाबा, उनका सर अपनी गोद में रखा। वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। हटो, जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो। गुलफराज ने उन्हें पीछे हटाते जल्दी से शेख साहब को सहारा दिया और सब बाहर की जानिब आ गए। क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? गजाला ने सादिया को बरहम देखा तो पूछ बैठी। अपनी बेटी के नसीबों को रोती है, बिन ब्याही बैठी रह जाएगी। लेकिन जाविया ने उसे ब्याहना नहीं है। ऐसा क्यों सोच रही हो? जानती हो, जाविया ने उस लड़की से बनी में निकाह किया है और उसे तो कमरे से बाहर तक आने की इजाजत नहीं। फिर क्या मसला है? उस लड़की को अगर जाविया ने कैदी बनाकर ही रखना है तो कैद खाने में डाल दे। अपने कमरे में क्यों रखा हुआ है? और जरूरत की हर चीज दे रहा है उसे। सादिया बेगम के माथे पर बल पड़े थे। गजाला बेगम ने कहा, सादिया, इन सब सवालों का जवाब जाविया ही दे सकता है। उन्होंने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, दे सकता है तो देता क्यों नहीं है? वो गुस्से से उठ खड़ी हुई। वो मेरी बेटी का हक मार के किसी वनी में आई लड़की को कैसे दे सकता है? और दुख तो इस बात का है कि ये सब कर रहा है और कोई से पूछने वाला भी नहीं। किसकी जुर्रत है कि वो चौधरी जाविया के फैसले के खिलाफ जा सके या उससे कोई सवाल और जवाब कर सके? अचानक से जाविया की आमद पर सभी खवातीन बुरी तरह गड़बड़ाई थी। गजाला बेगम बेटे को इतने दिन बाद देखकर जैसे खिल उठी थी, जो एक हफ्ते बाद वापस आया था। निकाह करने के बाद वो हवेली से चला गया था और आज वापस अपनी शक्ल दिखाई थी। वो इनका इकलौता बेटा था। माँ की आंखों की ठंडक। गजाला बेगम ने आगे बढ़कर जाविया की सभी पेशानी पर बोसा दिया कि उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए नरमी ही नरमी थी। कैसा है मेरा बेटा? उनकी आंखें भीगने लगी। जाविया ने उनका हाथ चूमते इस बात में सहराया तो उनके सीने से लग गई, जबकि सादिया बेगम ने पहलू बता, आपको क्या इतराज है चेचीजा? खुलकर बताएं। आदिल ने आज उनसे दो बात करने का इरादा बांधा था। आदिल बेटा, छोड़ो इन बातों को। गजाला बेगम ने उसे रोकना चाहा। नहीं अम्मी, अम्मी जान, मुझे बात करने दे। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं चचीजा, क्या कभी मैंने आपसे कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा या बाकायदा तौर पर मेरा और इसका नाम लिया और मैं इस रिश्ते पर हामी बड़ी हूं? नहीं ना, फिर आप किस बेस पर इतना वावेला मचा रहे हैं? जाविया ने इनके मुकाबिल खड़े होते वो बातें की जो ये सादिया बेगम दंग रह गई थी सुन के और सवालिया नजरों से जिठानी को देखा। जाविया, आपको और जस्मीन का रिश्ता बचपन से तय है। गजाला बेगम ने धीरे से कहा, तो इसमें गलती किसकी है? जाविया उनकी जाने पड़ा। बेटा, बड़ों ने ये फैसला किया और इस पे बुराई क्या है? गजाला बेगम को घर का माहौल दरहम बरहम होता दिखाई दे रहा था। रहने दे भाभी, मैं जानती हूँ ये सब ड्रामा क्यों हो रहा है। जस्मीन से निकाह के बाद शेरा कोट की जमीन जस्मीन के नाम कर जाएगी, इसलिए आप लोग अब ये आना कानी कर रहे हैं ताकि वो जमीन आप बचा सके।
सादिया बेगम ने ऐसी बात की कि गजाला समेत वहां चौधराइन के आते कदम भी थमे। उन्हें भी सादिया से इस किस्म की बात की उम्मीद न थी। ये क्या बोले जा रही हो सादिया, तुम होश में तो हो? जाविया के बारे में ऐसी बात करने की जरूरत किसे हो तुम्हारी? सो सरदार है इस गांव का और इसके साथ जुड़े 5 गांव का, और तुम्हें लगता है कि शेरा कोट की जमीन का कुछ हिस्से की खातिर वो ये सब करे? चौधराइन ने उसे आड़े हाथों लिया था, जबकि जस्मीन को माँ की ये बात बिल्कुल अच्छी न लगी। उसे जायदाद में सरदारनी बनना था, और वो भी सिर्फ जाविया की बीवी बनके ही ये ओहदा वो हासिल कर सकती थी। उसकी माँ ने सारा काम खराब कर दिया। 1 मिनट दादी जान, इन्हें बोलने दे ताकि मुझे भी तो पता चले कि इनके दिल में है क्या। जाविया ने संजीदगी से कहा, मैं वही कहूंगी, मेरी बेटी के हक में किसी को खाने नहीं दूंगी। सादिया बेगम की बात पर सभी ने उनकी तरफ सोच से देखा। बस हो गई आपकी बात खत्म, चौधरी जाबियार ने लब खींचते हुए कहा। आपको शेरा कोट की जमीन चाहिए ना? अभी इसी वक्त आपकी बेटी के नाम करता। जाबियार ये क्या कह रहे हैं आप? चौधराइन को शौक लगा। दादी साहब, मुझे बात करने दे। इन्हें शेरा कोट की जमीन से मतलब है, और वो मैं आप आज इनके नाम कर देता हूँ, लेकिन इनकी बेटी से निकाह कभी नहीं करूंगा। जाबियार अपना फैसला सुनाता गुस्से से कमरे की जाने पड़ा। सभी खामोश नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। चौधरी मुर्तसिम और चौधरी असलम भी वहां पहुंच गए थे। गजाला बेगम ने उन्हें सारी बात बता दी, जिसपे चौधरी असलम ने अपनी बीवी की अकल पे मातम किया, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। अब कुछ नहीं हो सकता था। कमरे का दरवाजा गुस्से से खोलते वंदा दाखिल हुआ। इस वक्त वो इतने गुस्से में था कि वहां मौजूद एक वजूद को फरामोशी कर गया। वो बिस्तर पर लेटे अपने घर वालों के मुतालिक सोच रही थी। उसकी सोचों का महवर आदिल पे चला गया तो लब धीरे से मुस्कुराहट में ढले। चलो, कोई तो था बाबा के बाद जिसने मुझे सच्चे दिल से चाहा। अभी वो इन्हीं सोचों में गलता थी कि दहाड़ की आवाज से दरवाजा खुला और वो चौंकी, और एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसे लगा उसका वहम है। वो शख्स गुमान से निकलकर हकीकत कैसे बन गया, लेकिन ये तो उसका वहम नहीं था, वो वाकई हकीकत था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर आदिल? विश्वा ने अचानक से आदिल को अपने कमरे में देख हैरान रह गई। कुछ पल तो सुन सी होगी, लेकिन जब अगले पल होश आया तो उसके सामने आम खड़ी है। उसके बरअक्स मुकाबिल खड़ा शख्स उसे मुकम्मल इग्नोर किए कबर्ड से कुछ निकाल रहा था। मिस्टर आदिल, आपको सुनाई दे रहा है? मैं कुछ पूछ रही हूँ। क्या कर रहे हैं आप यहाँ, और क्यों आए हैं? चले जाए प्लीज। डर और खौफ से उसकी आंखें भीगने लगी थी। उस शख्स की आंखें गुस्से से लाल ही। दोनों बाजू से जबड़े उसे कबर्ड के साथ जोर से झटका देते लगाया कि ईश्वा की कमर में कबर्ड इंतहाई जोर से पवस थी और उसकी सिसकारी निकली थी। तुम होती कौन है मुझसे मेरे जहाज यहाँ से निकालने वाली? औकात क्या तुम्हारी? बोलो, जवाब दो। वो फनकार था। उसकी गर्म सांसें ईश्वा को झुलसाती हुई थी। अपना दर्द भूले उसने आदिल की लाल आंखों में झांका, जहाँ आज मोहब्बत का कहीं शहवत अपना था। आप मिस्टर आदिल यहाँ? ईश्वर को समझ ना आ रही थी कि इतने दर्द के दिल से कैसे कुछ हो सकता है। वो भी उसके ससुराल पे आगे ये शख्स यहाँ कैसे पहुंचा? मिस्टर आदिल, आपको कोई हक नहीं है मुझे इस तरह के सवाल करने का, और आप यहाँ पहुंचे कैसे? जाए यहाँ से। ईश्वर ने हिम्मत करके उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब उसकी आंखों में एक पल के लिए ईश्वर को खौफ सा महसूस हुआ। तुम मुझे निकालोगी मेरे ही घर से? इतनी औकात है तुम्हारी? अब की बात पीछे होकर वो खड़ा होता, सीने पर बाजू बांधे नफरत से बोला, आपका घर। ईश्वर को उसकी बात पर यकीन न आया था। मिस्टर आदिल, जाए यहाँ से। कभी किसी ने देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। मेरी जिंदगी आगे ही मुश्किलों से भरी हुई है, इसे मजीद खारदार ना बनाए। ईश्वर ने उसकी बात को नजरअंदाज करते उसके सामने हाथ जोड़ दिए। वो डर गई थी कि ये लोग ये आदिल को भी नुकसान न पहुंचा दे। तुम्हारी जरूरत का मैं क्या करूं? बनी होके जाना पड़ रहा है खुद को प्लेट में सजा के पेश करने का। तो मेरा नाम अभी चौधरी जावियार आदिल है। जावियार ने उसे पीछे की तरफ धक्का देते कबर्ड से जमीन के कागजात निकाले। उसकी बात पर यशवा की हालत ऐसी थी जिसे काटो तो बदन में लहूंगी। मिस्टर आदिल चौधरी जावियार, चौधरी जावियार, मिस्टर आदिल। उसके दिमाग में उन दोनों की बास कश्ती थी। जावियार दरवाजे की जाने पड़ा। मिस्टर आदिल। यशवा होश में आई और उसके चेहरे उसके पीछे लगी और उसे वाजिब थामा। काश ये पल आदिल की जिंदगी में आया होता तो इस
उसको खुशकिस्मती समझता। तो चौधरी जावेर की जिंदगी में आया था और जिंदगी ज्यादा की कलाई को थामने की हिम्मत करके यशवा ने अपने लिए खुद मुश्किलात कर दी थी। जावेर ने एक नजर आने वाले और उसके हाथ पर पड़े अपने बाजू पर झटका लगा। आदिल नहीं। चौधरी जावेर करख्त लहजे में कहता हुआ यशवा को बहुत कुछ याद करा रहा था। आप मिस्टर आदिल, यशवा ने आंसू बड़ी आवाज में कहा। उसका चेहरा बेहद खुश था। क्या वो तुम्हारे सामने खड़ा है? वो आदिल नहीं है। चौधरी जावेर ने जिसके साथ तुम एक जवानी से ज्यादा कुछ नहीं हो। जावेर के अल्फाज यशवा के दिल में बहस थे। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको तो मुझसे मोहब्बत। शरा जस्ट शरा। जावेर उसकी दहाड़ पर यशवा उसकी दहाड़ पर सहम सी गई थी और 2 कदम पीछे हो। खबरदार जो अपनी जुबान से ये लफ्ज़ भी रहा है। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है? तुमने मोहब्बत करना तो दूर की बात, तुमने मेरी मोहब्बत को समझा ही नहीं। लगता पल लगा था ठुकरा दिया गया और आज किस मुंह से तुम लोग का मोहब्बत का दम भर रही हो? आदिल ने उसे बाजू से पकड़ कर झिंझोड़ा। आदिल के साथ उसकी मोहब्बत को तुमने मार डाला। इश्वा अकमल शेख आज जो तुम्हारे सामने खड़ा वो वही है, सरदार चौधरी जावेर अली आदिल, जो तुमसे बेपनाह नफरत करता है। निकाह भी और आज के बाद। इश्वा ने निकाह को समझती हुई एक आईब्रो उचकाते हुए कहा, डोंट वरी, सब समझा दूंगा। तंजन कहते हुए वो दरवाजे की जाने पड़ा। आप बात तो सुने मेरी। ईश्वर ने फिर उसका रास्ता रोका। प्लीज आदिल, एक बार सुन तो ले मेरी बात। जिस मुकाम पर तुम खड़ी हो अब कहने को कुछ नहीं बचा। अब तुमने सिर्फ सुनना है मेरा हुक्म और उसे पूरा करना है, क्योंकि अब तुम मोहब्बत नहीं रही हो मेरी, अब तुम बनी हो, मलकियत हो मेरी। आदिल दरवाजा लॉक करता जा चुका था, जबकि ईश्वा अभी भी आंधियों की जद में थी। नहीं, मिस्टर आदिल ही चौधरी जावेर, ऐसा ऐसा कैसे मुमकिन है? मिस्टर आदिल मुझसे वली में निकाह नहीं कर सकते, वो ऐसे नहीं है। वो तुम मुझसे मोहब्बत, जिस मुकाम पर तुम खड़ी हो अब कहने को कुछ नहीं बचा। अब तुमने सिर्फ सुनना है मेरा हुक्म और उसे पूरा करना, क्योंकि अब तुम मोहब्बत नहीं रही मेरी, अब तुम वली हो, मलकियत हो मेरी। आदिल के कहे गए अल्फाज की बाजगश हुई तो वो ढील सी गई। क्या वाकई आदिल के दिल से मेरी मोहब्बत खत्म हो गई? गर्म स्याल मादा आंखों के रास्ते बहने लगा। उसका दिमाग आज एक बार फिर माफ हुआ था। उसने कभी सोचा ना था कि आदिल ही चौधरी जावेर होगा और यूं एक दिन मद मुकाबिल आएगा कि इसकी रूह तक फना हो जाएगी। पलट के बंद दरवाजे की जाने देखा जहां से वो अभी अभी बाहर निकला था। मिस्टर आदिल, प्लीज डोंट डू दिस। दिल ही दिल में उसने उसे मुखातिब किया। ये रही जमीन के पेपर्स, आपको आपकी बेटी मुबारक। आज के बाद अपने दिलो दिमाग से ये निकाल दें कि मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। चौधरी जावेर निकाह कर चुका है, चाहे वनी में किया, लेकिन निकाह हो चुका है और चौधरी जावेर के लिए निकाह अहम है, ठीक उसी तरह जिस तरह मेरी बीवी। समझा सब? चौधरी साहबों ने सबको एक बार फिर समझाया और वहां से बाहर निकला। उसी पल उसके नंबर पर कॉल आने लगी, जिसे सुनता वो परेशानी से हवेली से बाहर निकल गया। तुमने बहुत गलत किया सादिया, एक जमीन के टुकड़े के लिए तुमने हीरा गनवा दिया। असलम चौधरी ने दुख से लीली से कहा। अम्मी, जस्मीन रोती हुई इसके पास आई। मुझे ये सब नहीं चाहिए अम्मी। वो रोते हुए उनसे इल्तिजा करने लगी तो पथराई नजरों से बेटी को देखती रह गई। उसके बाद वो वहां नहीं रुकी, भागती हुई अपने कमरे की जाले पड़ी। ये सब सही नहीं हुआ। चौधरी मुर्तसिम ने गजाला बेगम के पास आते कहा, क्या बोलो अब मैं? वो भी लब भीज गए। चौधरी साहब, आपका बेटा सरदार है इस गांव का, वो जो भी फैसला करेगा वही आखिरी तस्वुर किया जाएगा। अब खामोशी ही बेहतर है। गजाला बेगम मुर्तसिम चौधरी से उखड़े लहजे में बोलती अंदर की जाने पर गई। सुबह हुई तो यशवा को रोज की तरह अपना सर आज भी बारी बारी सा महसूस हुआ, क्योंकि उसे नींद नहीं आती थी। तो मुलाजमा से कह के वो छुप के कुछ दिनों से वो मेडिसिन ले रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जस्मीन के कहने से उसे कोई मेडिसिन नहीं बल्कि नींद की गोलियां फराहम की गई थी, जिसे वो समझ न सकी। मूंदी मूंदी आंखों से वो सामने देखा तो सोफे पर बड़े शहाना अंदाज में बैठे जावेर पर निगाह डाली। यशवा फौरन अपनी हवा से मुलटी। या अल्लाह, ये कब आए? पासी पड़ा दुपट्टा उठाकर अपने गेट लपेटा, उठती हुई जावेर के सामने जा खड़ी। जावेर ने माथे पर बल डाले, बिना पल के चिपके उसका सिरापा देखा। वो बहुत कमजोर लग रही थी। उसका भरा भरा जिस्म अब कांटा बनता जा रहा था।
जावियर को पूरा यकीन था कि उसने अच्छा खासा वजन कम कर लिया होगा। आप कब आए? वो थोड़ा घबराई थी। इश्वा अकमल शेख घबराई थी। जावियर ने उसे सर से लेकर पांव तक देखा। मैं कभी भी किसी भी वक्त आ सकता हूँ, ये मेरा घर, मेरा कमरा, और तुम मेरी मलकियत। जावियर ने उठकर उसके पास आते इसकी कमर के गिर्द बाजुओं फाड़ के तो इसकी सीने से जा लगी। सांसों के इर्तहाश ने इश्वा को कुछ बोलने की काबिल ही नहीं छोड़ा। दोनों यब तक एक दूसरे को देखे गए। जानती हो तो बहुत बड़ी साहिरा हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हें अपने दिल से खेलने नहीं दूंगा, बल्कि नफरत की ऐसी मार मारूंगा कि तुम सारी जिंदगी मोहब्बत को तरसोगी। उसकी उंगलियां यशवा की कमर में प्रवस्त होती जा रही थी। आदिल, ज़ेर वो उसे पुकारते फिर से अपनी मोहब्बत का जादू उस पर फूंकने लगी थी। आदिल की गिरफ्त नरम पड़ी थी। आई एम सॉरी आदिल, ये वो लफ्ज थे जिसे न जाने कितनी बार वो ख्यालों में जाविर को कह चुकी थी। तुम्हारा सॉरी माइट फुट, जबकि इसे छोड़ा था। आइंदा कभी नींद की गोलियां नहीं, ऐसी नींद चलाऊंगा कि जिंदगी पर चाक नहीं पाओगी। उसे बालों से पकड़कर झटका देते हो रहा था। मजीद वहां रुकना उससे बर्दाश्त से बाहर हो गया। वो यशवा को मजीद कोई दर्द नहीं देना चाहता था, इसलिए खामोशी से बाहर निकला। उसकी नींद की गोलियां देख चुका था और यही समझ रहा था कि वो जानबूझकर ये नींद की गोलियां ले रही है। यशवा संभलती उसके पीछे लपकी, लेकिन दरवाजा एक बार फिर बंद हो चुका था। प्लीज आदिल, मुझे एक बार अपनी सफाई में बोलने का मौका तो दे प्लीज। आप मुझे यूं सजा नहीं सुना सकते। यशवा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो रब की इस नेमत का शुक्रिया कैसे अदा करे, या उसे अपने लिए एक और कड़ी आजमाइश समझे। उस शख्स जिसे दिल से चाहा, जिसकी ख्वाहिश दिल ने की, अल्लाह ने कैसे उसका सब्र पे उसी झोली में डाल दिया। लेकिन उसकी बदगुमानी को दूर कैसे करे। उससे सख्त नाराज था और उसकी नाराजगी यशवा की जान ले रही थी। दिल, प्लीज ओपन द डोर। वो दरवाजा पीट रही थी, लेकिन वो लॉक करता वहां से जा चुका था। इतनी आसानी से तो वो उसे बख्शने के मुंह में ना था। अभी दोनों ही मोहब्बत की पहली सीढ़ी पे थे, इसलिए अपनी अपनी मोहब्बत को समझ ही नहीं पा रहे थे। एक ने एतबार ना करके मोहब्बत को मार डाला था और दूसरा बदला लेने की गर्ज से मोहब्बत को मार रहा था। जबकि मोहब्बत तो कुर्बानी मांगती है, दर्द देती है, ताहियात देती है, फिर भी जिंदा रहती है। और ये दोनों एक दूसरे के लिए पनपती मोहब्बत का गला घूंट रहे थे। अपने मोबाइल पे मुसलसल एक नंबर पर कॉल आते देख जावियर को मीटिंग छोड़नी पड़ी। कुछ दिन पहले ही जुर्गे में एक फैसला हुआ था, जिसमें गांव के एक शख्स इब्रार शेख को बचा लिया गया था और उसकी जगह उसकी बहन को वनी कर दिया गया था, जो कि चौधरी फरासत का बेटा था और इंतहाई अयाश परस्त था। इस बात से जावियर बहुत ज्यादा अफसरदा था। वो चाहकर भी इस रस्म को रोक नहीं पा रहा था। उसके लिए उसने एक कानून की मदद लेने का सोचा। इस सिलसिले में अपने वकील के साथ मिलकर इस मामले में अदालत की तरफ से रुजू कर रहा था, ताकि उसकी गांव में ये रस्म मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। आज भी उसकी एक जज के साथ मीटिंग थी। मीटिंग के दौरान उसके नंबर पर मुसलसल एक ही नंबर से फोन आ रहा था, जिसे वो बार बार इग्नोर करता। अब गुस्से में आते हुए एक्सक्यूज करता, उठा, कॉल अटेंड किया। दूसरी जानिब से जो सुनने को मिला, उसे उसकी मोबाइल पर हाथ की गिरफ्त सख्त हुई। मैं फौरन आ रहा हूँ कहते साथ इसने कॉल कट की। एडवोकेट जमीर से इमरजेंसी के कहते हुए वहां से बाहर निकला तो ड्राइवर गाड़ी लिए खड़ा था। फौरन फार्म हाउस खुला। उसे ऑर्डर देता वो गाड़ी में बैठा और किसी और नंबर पे कॉल मिला गया। कॉल तो जा रही थी, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था। डैम इट, नहीं यशवा, इस बार नहीं। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार नहीं। वो दिल ही दिल में यशवा को मुखातिब करते हुए बोला, जबकि दिल बुरी तरह घबरा रहा था। शेख अकमल को एक हफ्ते बाद घर ले आए थे। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो ज्यादा बात नहीं कर पा रहे थे। इस दौरान गुलरेज मामून शिजा ने शाजमा बेगम से बारहा पूछा कि यशवा को कहाँ छोड़कर आए, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। यशवा ने उन्हें कसम दी थी। हमारे माशरे की भी कितनी अजीब बात है, हमेशा आजमाइश के लिए सुतेली औलाद को चुनते हैं। यशवा शेख अकमल की पहली बीवी की औलाद थी, जबकि शीजा शाजमा बेगम की औलाद थी। यही आकर यशवा की जगह शीजा होती तो क्या शाजी इतनी आसानी से जा रहती थी, या उसको छुड़ाने की कोशिश न करती। उनके शोहर ने उनसे बात करना छोड़ दिया था, न सिर्फ बात करना बल्कि उनका हाथ का खाना पीना भी। शीजा ही बाप का सब कुछ संभाले हुए थे, जबकि शाजिया बेगम जाए नमाज में बैठकर अपनी सौतेली बेटी के हक में दुआ करती थी और अल्लाह से माफी मांगती। लेकिन इंसान भूल जाता है कि हकूक अल्लाह तो अल्लाह मौस कर दे, हकूक कुल इबाद की माफी नहीं है। जावियर का रुख फार्म हाउस की जानिब था, जहां उस वक्त
धोखे से जस्मीन ने उसे भेजा था। ये जावियर अच्छी तरह जान गया था कि उसे किसी प्लानिंग के तहत भेजा है। वो फार्म हाउस जैसे ही पहुंचा, बारिश ने हर तरफ जलथल मचा दी थी। इतनी तूफानी बारिश को देख जावियर के दिल में यशवा के लिए सख्त परेशानी पैदा होने लगी। वो गाड़ी से बाहर निकलता अंदर की जानिब उजलत से बढ़ा। जहां गुप अंधेरा था, वो कमोबेश ही वहां जाता था। वो तकरीबन काफी वक्त से उसने वहां का रुख नहीं किया था, ना ही वहां किसी का आना जाना था, इसलिए अंधेरे और खामोशी का राज था। जाविया ने सारी लाइट्स मुलाजिम जरमान से कहकर ऑन करवाई। क्या हुआ चौधरी जी, किसे ढूंढ रहे हैं? वहां मौजूद रमजान बाबा, जो फार्म हाउस का ख्याल रखते थे, जाविर को पूरे फार्म हाउस में पागलों की तरह चक्कर लगाते थे। रह न सके तो पूछ बैठे, रमजान बाबा, एक लड़की आई है यहाँ, किधर है वो? बेचैनी से पूछा। नहीं चौधरी जी, यहाँ तो कोई लड़की नहीं आई। वो हैरानी से बोले, क्या हो गया आपको? वो आई है यहाँ, मुझे इत्तला मिली है, ढूंढे उसे, यही कहीं होगी। वो बेहद परेशानी से बोला, चौधरी जी, मैं तो सारा वक्त यही था, ना गेट खोला, ना कोई लड़की आई और ना ही कोई और। आपको किसी ने गलत इत्तला पहुंचाई है। रमजान बाबा ने घबराते हुए अंदाज लेकर। तो जाविया बुरी तरह चौंका कि दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। वो सब कुछ दोबारा अपनी दिमाग से रिमाउंड करने लगा। वो कहाँ जा सकती है, उसे कहाँ भेजा जा सकता है? अपनी सोचों के घोड़ों को तेजी से दौड़ा रहा था। इतना वक्त नहीं था कि वो वापस हवेली जाता और जैस्मीन से हिसाब किताब करता। तब तक बहुत देर हो जानी थी। यही सोचता वो आंखें बंद करता, अल्लाह से मदद तलब कर रहा था। उस वक्त उसे खुद से ही सब कुछ करना था, अपनी यशवा को ढूंढना था। आज कितने दिन बाद जैस्मीन ने उससे बात की थी। यशवा को थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन बात पे क्या कही थी? उसने पैगाम दिया था कि चौधरी जाविया ने उसे फार्म हाउस बुलाया है। पहले तो सख्त हैरान हुई कि आदिल तो इससे बात ही नहीं करता, फिर उसे फार्म हाउस कैसे बुलाया? लेकिन उसे जाना था, क्योंकि आदिल ने बुलाया था, वो इनकार नहीं कर सकी। दिल ही दिल में वो खुश हुई कि शायद आदिल उसे एक मौका देना चाहता था। शावर लेकर जब उसने डिजाइनर जोड़े का इंतखाब किया और हल्का हल्का मेकअप करती हुए जाविर की कबर्ड की जाने पड़ी और उसकी शॉल्स पर हाथ फेरते जेरलब मुस्कुराती उसे लिया, जैसे आदिल उसके पास हो। इसमें से एक ब्लैक कलर की शॉल को उसने निकाला और अपने इर्द गिर्द लपेटा। मिस्टर आदिल, क्या हुआ? अगर आप मेरे साथ नहीं तो आपकी शाल से मुझे आपकी खुशबू महसूस होती है। ये मेरे पास होती है तो ऐसा लगता है जैसे आप मेरे साथ है। ईश्वर दिल ही दिल में आदिल को मुखातिब करते सोच रही थी। ये दो नामों की वजह से सब गड़बड़ हुई है। मेरी जिंदगी में आदिल बनकर आया और निकाह करते वक्त चौधरी जावेर बन गए। वो जेरलब मुस्कुरा दी। इतने में मुलाजमा वापस आई और यशवा को चलने का कहा। यशवा अपने आप को आईने में एक दफा देखती हुई मुस्कुराकर मुलाजमा के पीछे चलती और इस वक्त हवेली में कोई भी सामने नहीं था। मुलाजमा उसे न जाने किन रास्तों से लेकर जाती ही हवेली से बाहर ले आई। यशवा ने ज्यादा ध्यान न दिया। बाहर गाड़ी खड़ी नहीं थी तो उसमें मुलाजमा ने उसे इशारा किया कि वो जाकर बैठ जाए। यशवा ने एक कदम हवेली की जाने देखा और फिर कदम आगे बढ़ाए और ऊपर खुले आसमान की जाने देखा। चाहे इस वक्त बादलों ने डेरा जमाया हुआ था और किसी भी वक्त वो बरसने को तैयार थे। ठंडी ठंडी हवाएं उसे छूकर गुजरती तो एक पल को जैसे लर्जा तारी हो जाता। वो जल्दी से आगे बढ़कर गाड़ी में बैठी। कितने दिनों बाद उसने आज खुला आसमान देखा था। मुस्कुराते हुए एक तरफ होकर देख रही थी, जैसे पहली दफा देख रही हो। गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब आगे बढ़ चुकी थी, जबकि जस्मीन और मुलाजमा ने दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा। बीबी जी, देख ले हम फंस ही न जाए। मुलाजमा ने घबराते हुए जस्मीन से कहा, तुम बस बेफिक्र हो, अब निकलने की करो यहाँ से। तुम यहाँ हो ही नहीं तो कैसे इसको बेच सकती हो? बस जाओ अब तुम यहाँ से, बाकी मैं देख लूंगी। जैस्मीन ने उसके हाथ में नोट पकड़ाते उसे वहां से चलता गया और वो खुद अंदर आ गई। देखते हैं अब कैसे चौधरी जाविर तुम्हें अपनी इज्जत बनाकर इस हवेली की मालकिन बनाता है। जैस्मीन ने शातिराना दिमाग के साथ सोचते हुए वो मुस्कुराएगी। ऊंचे नीचे कच्चे रास्तों से होती गाड़ी बहुत तेजी के साथ सड़क पर रवा दवा थी। इर्द गिर्द अब ट्रैफिक की बजाय अकादका गाड़ियां ही नजर आ रही थी। रोड के दोनों तरफ पर अब घने दरख्त दिखाई दे रहे थे। यशवा ने गहरा सांस खारिज करते गाड़ी की सीट के साथ टेक लगा ली और उसके ख्यालों में जावियार आन सनाया कि किस तरह उसने उसे बचाया था। ये सब सोचते उसके लब मुस्कुराए। एक बार आदिल राजी हो जाए, इसके बाद मिस्टर आदिल के साथ मैं अपने अम्मी अब्बू से भी मिलने जाऊंगी। वो जरूर मेरी राह देख रहे होंगे। यशवा मन ही मन आगे की प्लानिंग बना रही थी।
इतने में गाड़ी एक बहुत ही बड़े बंगले के पास जाकर रुकी। बारिश और आंधी की वजह से बिल्कुल अंधेरा छा चुका था। कहीं कहीं दूर बिजली चमकती तो इर्द गिर्द का मंजर वाज़ा होता। अचानक से यशवा को डर सा लगा। इतनी तेज बारिश और शाम के साए गहरे हो रहे थे, और इस दौरान आदिल ने इस फार्म हाउस में बुलाया था। उसे कुछ खटक रहा था। बीबी जी, आप अंदर जाएं, साहिब अंदर ही है। ड्राइवर ने पीछे की तरफ गर्दन तुर्ची करते यशवा से कहा। तो यशवा अपने इर्द गिर्द जावेर की शाल को अच्छे से लपेटती हुई बाहर निकली। आन ही आन में बारिश की मोटी मोटी बूंदों ने से मुकम्मल तौर पर बिगड़ू वाला। एक मुलाजिम के जरिए वो अंदर की जानो बढ़ती चलेगी। शेड के पास रुककर उसने उस मुलाजिम की जाने देखा। मिस्टर आदिल कहाँ है? उसने पहला सवाल यही पूछा। उस मुलाजिम ने अंदर की जाने का इशारा किया। यशवा की नजर एक राहदारी की जाने उठी। वो थोड़ा झिझकी और आगे बढ़ी, या नहीं कि पलट कर देखा तो मुलाजिम भी वहां से गायब था। अब चार नचार उसे आगे चलना ही था। अपने भीगे कपड़े देखती वो माथे से पानी की बूंदों को हटाती आगे की जाने बढ़ती। राहदारी अबूर करते वो एक बड़े से हॉल नुमा कमरे में पहुंची तो एक पल के उसके लिए उसके कदम जामद हुए। एक नस्वानी वजूद वहां देखकर सामने बैठे 3 आदमी भी हैरान हुए। पलटकर तीनों ने आने वाली उस दोशीजा को देखा, और जिसे देखते इन तीनों की आंखों में एक शैतानी चमक उठी। यार, ये अपराध ने इतनी हसीन दोशीजा को यहाँ भेजती आज तो लगता है कुछ ज्यादा ही मूड पे है। इनमें से एक शख्स ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, लेकिन उसकी बात सुनते ही यशवा का पूरा जिस्म लरसा। वाकई ये तुम सही कह रहे हो, यकीनन ये खूबसूरती तो अबरार ने कहीं छुपा कर ही रखी हुई थी। दूसरा शख्स भी उठता हुआ बोलते हुए जोरदार कहका लगाते यशवा की जानिब पेशकदमी करने लगा। यशवा को ये अंदाजा लगाने में देर नहीं हुई कि वो गलत जगह पर आई है। ये एक ट्रैप था जिसमें उसे फंसाया गया है। ना यहाँ आदिल था, ना ही उसका ये फार्म हाउस। सी बात समझने में पल लगा। उल्टे कदमों पीछे बढ़ी और इसी राहदारी की तरफ भागती और वहां बाहर निकल गई। बारिश पूरे जोरों शोर से बरस रही थी। वो तीनों शख्स भी उसके पीछे ही लपके थे। यशवा बाहर निकली तो गेट बंद था। उसने बारिश में भीगते हुए गेट को जोर जोर से भलाया और वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन गेट बंद होने की वजह से वो वहां से न निकल पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो मुकम्मल भीगी हुई थी, उस पर ठंड और लर्जा तारी हो चुका था। इतने में वो तीनों आदमी भी उसके सामने आन खड़े हुए। उन तीनों को देखती यशवा जावेर की शान को मजीद मुट्ठियों में भेजे अपने आगे वो थाम गई। उसका दिल बहुत सख्त धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो यहाँ कैसे कैसे निकले। इससे पहले कि वो कुछ करती या सोचती, उनमें से एक आदमी ने आगे बढ़कर यशवा की शाल को खींचा। यशवा के मुंह से जोरदार चीख निकली। शॉल उसने इस तरह लपेटी हुई कि उसकी खींचने से वो घूम कर जाकर गेट के साथ लगी और उसका सर बुरी तरह जख्मी हुआ। बिना शॉल के उसके कपड़े उसके जिस्म के साथ चिपके देख वो तीनों शख्स अपनी चेहरे पर कमीनगी हंसी सजाए आगे बढ़े। यशवा उन्हें देखते वहां से भागने की कोशिश करने लगी कि उनमें से एक आदमी ने उसे बाजू से पकड़ते दबोचा। यशवा ने खींच कर उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया तो शख्स आग बगोला हो गया और उल्टा यशवा को उससे भी ज्यादा जोर का थप्पड़ रसीद किया तो यशवा दूर जमीन पर जा गिरी। उसके होंठ का किनारा फट गया। गहरी सांस लेते उसने पलट कर उन तीनों शैतानों को देखा और नफी में सर हिलाती हुई पीछे हुई। वो तीनों बारिश में भीगते उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वो पीछे बैठते ही रेंगते हुए पीछे की तरफ खिसकी। उसमें से एक शख्स ने आगे बढ़कर यशवा का दुपट्टा थामना चाहा कि उसी लम्हे उसकी कलाई पे एक मर्दाना हाथ में मजबूत ग्रिप जमाई। उस शख्स का हाथ यशवा के दुपट्टे तक नहीं पहुंच सका था। यशवा ने पलके उठाकर सामने देखा तो उसकी जान में जान आई। उसका मजाजी खुदा, उसका मुहाफिज, उसका शौहर इस वक्त जावेर वहां मौजूद था और जिस कहर की नजर से वो उन तीनों को देख रहा था, यशवा को यकीन था कि वो अब उन लोगों को नहीं छोड़ेगा। और वैसा ही हुआ। जावेर ने उस शख्स की कलाई को सख्ती से मरोड़ा कि वो चीख उठा और पीछे खड़े आदमियों ने भी जावेर को देखा तो डरकर एक लम्हे के लिए वो भी पीछे हटे। चौधरी जावेर को कौन नहीं जानता था और इससे वो क्या मुकाबला करते। वो एक बॉडी बिल्डर था, जबकि उनकी आधी जान तो हराम मशरूब में ही खत्म कर डाली थी। वो नशे में थे, इसलिए उन्होंने पीछे हट जाना ही मुनासिब समझा। लेकिन जावेर उन्हें छोड़ने वालों में से नहीं था। एक के बाद एक को मारता गिराता चला गया। उन तीनों को अदमुआ करता वो वापस यशवा की जाने पड़ता। बारिश में भीग जाने की वजह से उसकी आवाज मुअत्तल हो रहे थे। जावेर ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बाहर की जानिब कदम बढ़ाई। गेट को जोरदार टांग मारी तो वो खुलता चला गया। गेट पे खड़ा गार्ड मौत की नींद सोच का था। जावेर के सिक्योरिटी गार्ड भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने जावेर को कवर करते गाड़ी तक जाने में उनकी हिफाजत की।
यहाँ से जावेर का फार्म हाउस कुछ ही मील की दूरी पर था। या जावेर यशवा को लिए अपनी गाड़ी के अंदर बैठा और उधर का रुख कर चुका था। फार्म हाउस में आते ही जावेर यशवा को लिए अपने रूम की जाने पड़ा। यशवा इस वक्त नेम बेहोशी की हालत में थी। वो आदिल को देखकर जी उठी थी, लेकिन उसके हवास पूरी तरह नहीं जाग रहे थे। बारिश ने और फिर जो हालात अभी गुजरे थे उसने बुरी तरह उसे झंझोड़ डाला था। आदिल, उसने धीरे से उसे पुकारा। जावेर ने उसे खड़ा किया तो वो लड़खड़ा। जावेर ने फौरन से उसे थामा तो उसने एक प्यारी सी मुस्कान से उसको देखा। जावेर उसका ठंडा पड़ता जिस्म महसूस करता सख्त परेशान हुआ था। आप मुझे माफ। इश्वा के उन अल्फाज पे जावेर का दिल टूट के उभरा। वो गिरने वाली थी जब उसके नाजुक वजूद को जावेर ने अपनी बाहों में समेटा। वो लड़खड़ा कर उसकी बाहों में झूम गई। इश्वा, आंखें खोलो प्लीज। जावेर ने परेशानी की आलम में उसे पुकारा, जबकि वो होशो खरूश से बेगाना होती उसे अजीब दुराहे पर ला खड़ा करते। प्लीज यार, डोंट डू दिस। उसकी गाल थपथपाते हुए परेशानी से बोला। अपनी बाहों में उठाए उसे बिस्तर पर लाया। उसे बिस्तर पर लगाते लिटाते उस पर कंफर्टर डाला, लेकिन उसे सर पड़ता उसका वजूद जावेर को बेसुकून कर रहा था। प्लीज यशवा, बेकअप। उसकी हाथों को अपने हाथों में लिए वो रगड़ते हुए बोला। एक ठंड ऊपर से बारिश में भीगने से यशवा का वजूद नीला पड़ रहा था, जिससे जावेर की बेचैनी में इजाफा हो रहा था। रूम का हीटर तेज था, बाहर बारिश का जोर भी टूट नहीं रहा था। सिग्नल इस इलाके की सबसे मेन मसला था और इस वक्त कोई हल उसे नजर नहीं आ रहा था। लेकिन यशवा की गीले कपड़ों को चेंज करना लाजमी था। वो अपने ही कपड़े कबर्ड से निकाल कर लाता, तमाम लाइट्स ऑफ कर गया और उसके नर्म नाजुक वजूद को अपनी आगोश में लिए उसके कपड़े चेंज करता दोबारा से लाइट्स ऑन कर गया। इस पे पूरा इख्तियार होते हुए वो उसके करीब न जा सका था, लेकिन उसका ख्याल रखना एक शौहर होने के नाते उसका फर्ज था और वो इसने निभाना था। आज शाज़मा बेगम की चुप टूटती थी। उन्होंने शौहर के कदमों में बैठकर माफी मांगी। काश तुम मेरी बेटी की सगी माँ बच सकती। उसे वनी करने के बजाय उसे खुद को जान से मारती थी तो इतना दुख ना होता। वो कड़क लहजे में बोले, हम जाएंगे यशवा कोले में। गुलरेज मामू ने उनका हाथ थामते हुए कहा, नहीं, हम में से कोई नहीं जाएगा। इसे लाने वाला खुद लेकर आएगा। वो बहुत मुतमईन अंदाज में कहते, बेड डाउन से टेक लगाते आंखें मूंदे। अंकल, आपकी बेटी इस वक्त मेरे पास है और आदिल ने उन्हें फोन पर सब कुछ बता दिया था, बहुत पहले। वो यशवा का हाथ उनसे मांग चुका था, तब उन्होंने सोचने का वक्त मांगा था, क्योंकि उनकी बीवी का दिल था कि यशवा की शादी भाई के बेटे से करवाए। अभी ये मामला इधर ही था कि वो माँ के साथ किडनैप हो गई और फिर शाज़मा उसे वनी करा। तब वो ये सब नहीं जानते थे। बाद में आदिल ने उसे फोन पर सब बताया तो उन्हें यकीन दिलाया कि वो यशवा को उनके पास लेकर आएगा। तभी वो इतने दिन से खामोश थे। उसकी आंख खुली तो सर भारी भारी हो रहा था। अपने पेट पे वजन महसूस करते उसने जोर का सर उठाया और पेट पर धरे हाथ को छुआ तो कुछ पल तो समझने में उसे लगे ये कहा है वो और किसके साथ है। मर्दाना हाथ महसूस करती उसका दिल जोरों से धड़का। वो बिल्कुल साकित हुई। या अल्लाह, ये मिस्टर आदिल। वो दिल ही दिल में दुआ मांगती गर्दन को जरा सा मोड़ती अकलों पीछे बहुत ही करीब सोए आदिल को देखने लगी। उसकी रुकी सांस बाहर की। वो सोए में इतना प्यारा लग रहा था कि यशवा इस वक्त कितना सुकून महसूस हो रहा था उसे। ये सिर्फ उसका अल्लाह और उसकी रूह जानती थी। आदिल का उसके पास होना इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि वो एक लम्हे को भी उससे बेखबर नहीं हुआ। उससे दूर होके भी पल पल की रिपोर्ट रखता था और यही वजह थी कि कल रात उसे ऐसे बचा कर लाया जैसे मुसीबत उसके होते यशवा को छू ही नहीं सकती थी। रात का सारा मंजर यशवा की आंखों के सामने लहराया तो उसने एकदम झरझरी सी ली और पलटकर आदिल की जाने देखा तो इसके चेहरे को देखते उसका दिल जोरों से धड़का। माथे पर गिरे सिल्की बाल, हल्की हल्की बियर्ड, अनाबी लब, बंद आंखों पे जो नजर आई तो दाएं आंखों पर प्यारा सा तिल उसे अपनी तरफ माइल करने लगा। होंठों के पास का तिल तो यशवा को हमेशा अपनी जानिब मुतवज्जह करता था। यशवा का जी चाह के इसे हाथ लगाकर छुए, उस पे अपने लबों का खराज पेश कर ली तो मुझसे अपनी ख्वाहिश दिल में ही मारनी पड़ी। जब आदिल ने कसमसा कर अपनी आंखें खोली और उसी लम्हे यशवा ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली, यहाँ तक कि सांस भी रोक गई। आदिल से अपने इतना करीब देख के माथे पर बल डाल गया, लेकिन फिर उसके माथे को फिक्रमंदी से छूता उसका बुखार चकने लगा जो अब तक तो उतर चुका था। तशक्कुर से गहरा सांस खारिज किया। रात को उसे अपने करीब सुनाता उसकी तरफ से अपना फर्ज पूरा कर गया था, लेकिन अपने हकूक फिर भी नहीं हासिल किए थे।
وہ جانتا تھا یہ لڑکی اس سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن جس دن یہ اپنے لبوں سے اظہار کرے گی اس دن وہ اسے اپنی محبت کی شدت بتائے گا۔ دھیرے سے یشوا کا سر اپنے سینے سے ہٹایا، بہت آرام کے ساتھ تکیے پر رکھتا۔ پیچھے ہٹنے ہی لگا تھا کہ یشوا نے اسے جٹ سے کالر سے پکڑے اپنے قریب واپس جھٹکا دیا۔ تو بکھلا کر اس کے اوپر جھکا۔ مسٹر عادل، مان جائے، آپ مجھ سے اب بھی محبت کرتے ہیں۔ اب بھی میں آپ کی محبت ہوں، ملکیت نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتی، سرکوشانہ انداز میں کہتی۔ عادل کو غصہ دلا گئی۔ تم میری اجازت کے بنا گھر سے نکلی کیسے؟ بنا ذرا سا بھی لحاظ کیے وہ بولتا۔ یشوا کا دل پھر سے دھڑکا گیا۔ یشوا نے آنکھیں میچے دانتوں تلے لب دبائے۔ چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ عادل تو اس مسکراہٹ میں کھوسا گیا۔ اس کی گال پر نظر گئی تو اب بھی اس کا گال لال تھا اور ہونٹ کا کنارہ سجا ہوا تھا۔ عادل کا دل چاہ کے اس کا گال چھوتا۔ وہ اس کے لبوں کے زخم پہ انگوٹھا رکھتا مسلنے لگا کہ وہ سسکی بھر گئی اور دھیرے سے آنکھیں واقعی اور یہ فسوس خیز لمحے اپنے اختتام کو پہنچے۔ عادل نے پیچھے ہوتے کمفرٹر ہٹایا، اڑتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھا کے چیک کرنے لگا۔ اس میں حشام کی میسج پڑھ کے اس کے ماتھے کی رگیں تنی تھی۔ آگے سے اسے مزید کاروائی کا بتاتا اڑتا واش روم جانے لگا۔ یشوا اچانک سے اٹھتی اس کی راہ میں حائل ہوئی۔ آپ ایسے نہیں جا سکتے، آپ کو مجھے معاف کرنا ہوگا۔ یشوا نے لاڈ سے عادل کا راستہ روکتے محبت سے کہا۔ آگے سے ہٹو۔ عادل نے سٹ لہجے میں اسے وارن دیتی نظروں سے دیکھا۔ بالکل ہے، یا تو آپ مجھے معاف کریں گے یا پھر سزا دیں گے، جو آپ کا دل کرے آپ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی اسی وقت فیصل ہے۔ آج یشوا کے تیور ہی نرالے تھے۔ بڑی دل ربائی والے انداز میں اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کی پوروں سے عادل کی شرٹ کو کالر سے چھویا تھا، جبکہ اس کے ٹراؤزر اور شرٹ پہنے اس وقت وہ کوئی چھوٹی سی بچی ہی لگ رہی تھی۔ اس کے حسن سے نظریں چناتا وہ سائڈ سے نکلنے لگا کہ وہ پھر سے اس کے سامنے آئی۔ اس بار اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اس کی اتنی دیدہ دلیری پر عادل نے ایک نظر اسے اور دوسری نظر اس کے بازوں پر ڈالی جو عادل کے گرے کے گرد ہار بنائے ہوئے تھی۔ جزا یا سزا؟ وہ قریب ہوتی نم لہجے میں بولتی عادل کو چمکا گئی۔ عادل یکدم اس کی کمر کے گرد بازو کو مائل کرتے اسے خود کی سانسوں سے بھی زیادہ قریب کر گیا کہ وہ دھک سے رہ گئی۔ سانسیں سانسوں سے ٹکرا رہی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے سنگ ہونے کی شدید خواہش کی۔ عادل کو یشوا کا دل اپنے دل کے ساتھ دھڑکتا محسوس ہوا۔ تمہاری اتنی جان ہے کہ میری دی ہوئی سزا سہ سکو گی؟ انتہائی گمبھیر لہجے میں کہتا۔ وہ یشوا کا چہرہ گلال کر گیا۔ اس کی گال دہک اٹھے جب سے آنکھیں میچ گئی۔ وہ اس لمحوں کی زیر اثر تھی۔ عادل اس کے چہرے کے نقش لین میں کوتا اس کی گالوں پر جھکتا، اس پہ اپنے لب رکھ گیا۔ یشوا کو پورے جسم میں کرنٹ ٹوٹتا محسوس ہوا۔ سانسوں کا بھاری پن محسوس کرتا عادل اس کے دوسرے گال پر بھی لبوں سے چھو گیا تھا۔ یشوا کی سراسیمگی والی حالت دیکھتا وہ اچھا خاصا محفوظ ہوا۔ مزید کی بے باکی کی گنجائش نہیں بچی تھی۔ وہ مکمل اس کے آسرے پر کھڑی تھی، اس کی ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی۔ عادل پیچھے ہٹنے لگا کہ وہ بھی اس کے سارے سے قریب ہوتے چلے گی۔ عادل نے اسے کمر سے پکڑتے اوپر کی طرف ہلکا سے اٹھاتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب لایا جو اس وقت شرم و حیا کے رنگوں سے سجا تھا، اور دھیرے سے اس کے لبوں سے اپنے لبوں پر مس کیا۔ یشوا کو لگا آج اس کی دھڑکن رک جائے گی۔ بس اتنی سی ہمت تھی؟ میری ذرا سے قربت سے تمہارا یہ حال ہوا؟ مکمل سزا دی تو کیا حال ہوگا تمہارا؟ وہ معنی خیزی سے کہتا، اسے تھامے بیڈ پر بٹھاتا، خود وہاں سے واش روم کی جانب پڑ گیا، جبکہ یشوا کو ابھی بھی اپنے گال اور لب دہکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اپنے گالوں کو چھوتی وہ عادل کو سوچنے لگی۔ چہرے پر دل فریب مسکان گئی، تبھی اس کی نظر اپنے کپڑوں کی جانب مبذول ہوئی اور وہ ساکت رہ گئی۔ مسٹر عادل؟ وہ دانت کچکچا کر رہ گئی، پر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو گیا تھا۔ یاور یشوا کو لیے حویلی آیا تو جاسمین اسے یاور کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سبھی ایک ساتھ وہاں جمع ہوئے۔ عادل، یہ آپ کے ساتھ؟ غزالہ بیگم حیران ہو۔ جی میرے ساتھ، اور آپ کی بتیجی نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی میری بیوی اور میری عزت کو برباد کرنے میں۔ وہ غصے سے پھنکارا۔ یشوا نے سہم کر اسے دیکھا۔ جو ضرور اس لڑکی نے کوئی پٹی پڑھائی ہوگی تمہیں۔ جاسمین فوراً ہکلاتے ہوئے بولی، شٹ اپ، اگر تم چچا کی بیٹی نہ ہوتی تو اس وقت زندہ زمین میں گاڑ چکا ہوتا۔ آخر ہوا کیا ہے، کچھ تو پتا چلے۔ مرتسم چودھری نے بیٹے کو دیکھتے پوچھا تو زاویہ نے رات والا واقعہ بتا دیا، اور یہ سب اس نے چودھری فراست کے بیٹے ابرار کے ساتھ مل کر کیا۔ رات کو وہ مجھے مل جاتا تو سیدھا اسے موت کی گھاٹ اتار دیتا۔ زاویہ اس وقت انتہائی غصہ میں تھا۔ یشوا اس کی کلائی تھام دی تو وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔
असलम चौधरी ने बेटी को देखा। बाबा ये झूठ। चटाख। असलम साहब का हाथ उठा। तुम जैसी बेटी से तो मैं बे औलाद ही अच्छा था। वो रो दिए थे। जावियर के आगे हाथ जोड़े को, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जैस्मीन मुलाजमा के साथ साफ दिखाई दे रही थी। एक बात मैं आप सबको और बताना चाहता हूँ, यशवा मेरी मोहब्बत है। ये वही लड़की है जिसे मैं शहर में मिला था और जल्द से जल्द आपसे मिलवाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि चौधरी फरासत ने अपना पटारा खोल दिया और इन मोहतरमा ने माँ को बचाने के लिए खुद को पेश कर दिया। जावियर ने यशवा को बूई से नवाजा। वो जो मुझ पर गुस्सा किया वो भी बताए सबको। फौरन से यशवा की जुबान खुली थी। जब से उसे पता चला था जावियर ही आदिल है, वो पूरे एतमाद हो गई थी। जितना मर्जी वो नाराज होता, लेकिन वो जान गई थी कि एंड पर वो मान जाएगा। अभी तो आगाज है, बहुत बदला लेना है तुमसे। वो उसके करीब होता गंभीर लहजे में बोला, बस माफ कर दे, फिर जो मर्जी बदला ले। वो पूरी उम्मीद नजरों से देखते बोली। सभी घर वालों ने यशवा को अपना लिया था क्योंकि वो जावियर की मोहब्बत थी। वो रूम में आया तो यशवा उसके सीने में जा समाई। जावियर तो एकदम साकित ही हो गया। फिर उसने भारी भारी जावियर के गालों पर रब रखे और फिर शिद्दत से उसके लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया, लेकिन जावियर बिल्कुल स्टिल खड़ा था। आई लव यू सो मच मिस्टर आदिल। वो गहरी सांस भरते हुए बोली तो जावियर ने उसकी कमर में बाजू हवाल के उसके लबों को इस बार इससे भी ज्यादा शिद्दत से अपनी गिरफ्त में लिया। खूब बेजान सी होने लगी। उसीलिए पीछे हुआ तो बिस्तर पर गिरा तो दोनों को होश आया। एक दूसरे को देखते हंस दिए। पहली बार दोनों इस कदर करीब आए थे कि एक दूसरे को ही घर कर गए थे। लाइट ऑफ कर दो। इसके बालों को उसके चेहरे पर पड़ता देख गंभीर लहजे में बोला तो शर्मा कर पलकी चुका गई। जावियर आज उसे उसके बाबा उसकी फैमिली से मिलवाने लाया था। वो अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू भी बहते जा रहे थे। विश्वालों ने बहुत रुलाया था। वो खुद भी रोए जा रही थी। शाहजला बेगम ने भी आज चेशमा को गले से लगाकर अपनी सारी ज्यादतियों को दिल से माफी मांगी थी। वो सबको एक साथ देखकर खुश थी। कड़वा वक्त था गुजर गया, मगर बस अब किसी ने भी रोना नहीं है। शिजा केक उठाते वहां आन मौजूद हुई। आज यशवा की 21वीं सालगिरह थी। वो जो मनाने लगी थी, हैप्पी बर्थडे टू यू। सबकी तालियों में उसने केक कप के बाप की जाने पड़ाया, जो इन्होंने जावियर की तरफ कर दिया। सबसे पहला हक इसका है जिसकी वजह से आज तुम यहाँ हो। वो जावियर के बहुत शुक्रगुजार थे जिसने उनकी बेटी को संभाल लिया, वरना तो वो बेटी के गम में मर ही जाती। हैप्पी बर्थडे मलकियती जाना। उसके हाथ से केक खाता प्यार भरी निगाहों से देखता धीरे से बोला तो उसकी पलकें चुप गई। वक्त गुजर गया था, उसका काम था गुजरना। जावियर अपने इलाके में वनी की रस्म को तकरीबन खत्म कर चुका था, लेकिन फिर भी कहीं एक जगह आज भी ये रस्म मौजूद थी और दूसरी तरफ वसंत की शादी को अपनी अना की बेल चढ़ा दिया जाता था। ये तो मौका हुआ जो यशवा को जावियर मिल गया, वरना हर यशवा की किस्मत में जावियर नहीं होता। कुछ की किस्मत में गोली लिखती जाती है। अल्लाह सबकी बेटियों को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे।